बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन का स्पेशल सेगमेंट का हिस्सा है ये। हम प्रोग्राम कर रहे हैं 13 फरवरी से हमने शुरू किए थे और हम इरादा रखते हैं कि 19 मार्च तक आप भी हमारे साथ रहें। फाइनल का मुकाबला जब देखेंगे पीएसएल में फ़ाइनल कौन सी टीम्स खेलेंगी अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन पोजीशन वाजे होती जा रही है। कम से कम एक टीम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वैसे तो दो टीम्स हैं, लेकिन एक टीम कोयटा ग्लैडिएटर जिसका कल मुकाबला था, और कोयटा ग्लैडिएटर को लाहौर कलंदर्स ने पहले तो एक कम स्कोर पर आउट हो गई थी लाहौर कलंदर्स, लेकिन उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को दबोच लिया और बहुत नाकिस परफॉर्मेंस कहा जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से हुई। उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को, लेकिन वो उस सूरत हाल को कैपिटलाइज नहीं कर सके अब। और लाहौर की पोजीशन तो अच्छी हो गई है। लाहौर ने तो काफ़ी मुकाबले जीते हैं और लाहौर इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है और उसने अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम भी किया है। लेकिन कोयटा के लिए सूरत हाल काफ़ी नाजुक हो चुकी है, क्योंकि कोयटा के पास गलती की गुंजाइश शायद अब नहीं है, या क्या सूरत हाल है, इस पर हम पूरा प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और कोयटा से भी हम एक बड़ी तवाना आवाज़ को हम शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे कि इमरान गिचकी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कोयटा के, बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बुधिंजो साहब के, तो वो भी खेल से काफ़ी शगफ रखते हैं और काफ़ी उन्होंने भी इवेंट्स कराए हैं जब वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हुआ करते थे उस वक्त, और दीगर सूरत हाल में भी, तो वो भी हमारे साथ होंगे। और उसके अलावा जो आज दूसरा मुकाबला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबला करेगी कराची किंग्स से, तो उस मुकाबले के अहवाल पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं कोशिश करूँगा कि कराची किंग्स से हमने एक साहब को आज इनवाइट किया है, एडम, उनका नाम है रोजिंगटन, एडम रोजिंगटन फ्रॉम इंग्लैंड। ही इज़ अ प्लेयर हु हैज़ जॉइंड द कराची किंग्स just 2 days back, so he is with us at the moment. So I will invite him, and I will talk to him first, then we'll carry forward the program. So thank you very much, Rosington, for joining us. Your first time in Pakistan, how has been the experience so far? Yeah, it's been good. I've only been here for a few days, and first day practice was cancelled. So yesterday at the game was the first time I managed to get out. But really enjoyable experience. Great to play in front of a real packed crowd. So your first time in Karachi, and your first time in Pakistan rather, and you are playing with Karachi. So how's the experience with of playing with Karachi? Yeah, it was brilliant to make my debut. Very good wicket, very batsman-friendly wicket. And like I say, we played in front of a great crowd there. They were really up and about all day. So yeah, really enjoyable. For our viewers, let's talk us through your journey, your cricket journey so far. How it started, and how did you come to PSL? What made you to come to the PSL? Started off obviously at home, really growing up playing with my brothers in the garden. Then went all the way through Middlesex age groups, into the academy there. Played there professionally for a few years. Moved on to Northampton, and then recently moved to Essex. Played there for a couple of years in the 100 with the London Spirit. Just finished coming back from South Africa. I played there in the SA20, and then the opportunity arose here to come over here for 3 games for a bit of cover, and I jumped at that. So really looking forward to it. So many English players have been coming to PSL, and they must have told you something or imparted some knowledge about Pakistan to you as well. Did it happen to you? Somebody told you to come to Pakistan and about PSL? More so just watching it from the outside. It looks like a great competition, some very highly skilled players, and like I say, it's always nice to play in front of some passionate fans. I was lucky enough to do that in South Africa, and then, like I say, I only had 1 game here so far, but it seems exactly the same here. Adam, tell us, growing up, who was your favorite cricketer, and may I say a Pakistani cricketer you liked in growing up age? Oh, that's a tough one. Probably always enjoyed watching Inzamam ul Haq bat, and then probably watching Wasim Akram bowl. Being a wicket keeper, a bit unusual to pick a bowler, but yeah, I'd probably say them two. You mentioned Inzamam's birthday is also today. He was there on the ground 2 days back. Did you get a chance to see No, him? just sort of at the end of the game, sort of shook hands and said well done, sort of thing. So, any any
let me rephrase it. How has been the hospitality of the Rawalpindi crowd or Rawalpindi people, and you tried any food item there It's specifically? been brilliant so far. Obviously in the hotel here, down at the restaurants there, there's a bit of everything there, so I managed to try a few little bits. So yeah, definitely over the next few days while I'm here, I'll try some stuff. Thank you very much, Pleasure, Adam, thank and you. good luck for the game tonight against the Islamabad United. ये थे एडम्स फ्रॉम द कराची किंग्स, इनसे हमने बात की और अब मैं चलता हूँ अपने पैनलिस्ट की जानिब। आपके साथ आपको मालूम है बदी जमा रोज़ाना हमारे साथ होते हैं कराची स्टूडियो में। आज हमें एक नए चेहरे ने ज्वाइन भी किया है। बदी को आपने देखा, एक नया चेहरा है, ये हैं अनूश उमर साहिबा। ये सोशल वर्कर हैं और क्रिकेट का शौक़ भी रखते हैं, तो हमने इनको आज इन्वाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को। वालेकुम सलाम। और एजाज शेख साहब हैं हमारे साथ आज लाहौर से। एजाज शेख साहब लाहौर में बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अचानक आ गए एजाज शेख साहब। कैसे हैं एजाज भाई? ठीक हैं? एजाज शेख से भी मुलाकात करवाते हैं। अनूशा आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बदी साहब की तरफ चलूँ पहले? जी बिल्कुल। कुछ खेल की बातें कर लें, सोशल वर्कर्स हैं, क्योंकि इनकी फील्ड से बात हम करेंगे। खेल से इनका जो ताल्लुक़ है, खेल से जिनका जो शौक़ है, उस पर भी बात करेंगे। कल मुकाबला हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर ने फिर मायूस किया, क्या वजह है? उनको क्या अब करना चाहिए? देखिए आसिफ भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए। अब तो अपना सामान बांध दें और वापस जो अपने अपने घरों को जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो बैटिंग में कर रहे हों या बॉलिंग में कर रहे हों, बहुत ही। और उसके अलावा कप्तानी भी जो हम बात करते हैं कि सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, कल उसकी मुझे कप्तानी में भी जो है ना वो चीज़ें नज़र नहीं आई। आप देखिए, आपने फील्डिंग की 50 रन पे, जब आप 7 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं और उसके बाद अगले जो 3 प्लेयर हैं आपको उनको आउट नहीं कर पाते और स्कोर 148 तक बन जाता है। अगर वो ज़मान रन आउट नहीं होता तो मेरे ख्याल में 160-65 रन भी वो ले आते, जिस तरीके से सिकंदर बैटिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल में, और फिर आप उसके बाद उनकी बैटिंग जब आई, आप देखिए इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद 6 ओवर में 53 रन, पावर प्ले का आपने फ़ायदा उठा लिया, सिर्फ एक ही आउट है, लेकिन उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आप बताएंगे 14 ओवर में आपसे 94 रन नहीं बन सके, और ख़ुद कप्तान जो छठे नंबर पर आए पे इफ्तिखार से बैटिंग नहीं हो रही। उसके अलावा विल स्मिथ जो शुरू में अच्छा खेला, फिर उससे बैटिंग नहीं हुई। तो यहाँ मोहम्मद नवाज मुसलसल नाकाम, वो भी रन नहीं कर रहा। तो सरफराज अहमद ने कल कोई भी बड़ी हिट उनसे नहीं लग सकी। 28 बॉलों पे 27 रन मुझे बताएं, सिर्फ एक चौका, और मेरी समझ से बाहर है उनकी बैटिंग भी। और ये छठा मैच। शेख को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एजाज शेख भी करते हैं बात। आज हम कोयटा ग्लैडिएटर पर ज़्यादा बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर, हमारे साथी, हमारे भाई एजाज शेख साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे कल आपने कोयटा की परफॉर्मेंस देखी, फिर वही परफॉर्मेंस, और ये मैच पिछले मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंस थी, पिछले सीजन में भी ऐसी परफॉर्मेंस थी, क्या वजह समझते हैं आप? असर भाई, ये सीधी सी बात है कि मैं अगर पूरा मोरल इल्ज़ाम ठहराऊं तो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार सरफराज अहमद है। उसको चाहिए था कि ये मैच फिनिश करके निकलता, और क्योंकि एक एंड पे वो क्रीज पे मौजूद था सरफराज, और दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही थी और स्कोर भी नहीं बन रहा था, तो उसको चाहिए था कि उस वक्त वो अपनी जो क़यादत, कायदाना जो सलाहियतें हैं, उनको बुरे कार लाते, खुद फेस करता, चौके लगाता, छक्के लगाता, और मैच फिनिश करके जीत की सूरत में वो आउट बाहर डग में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा डग आउट में पहुंचे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। जिस तरह आप देखें कि कितना अच्छा उनकी ओपनिंग स्टैंड था, और ऐसा ही लग रहा था कि शायद बिल्कुल इजी वन साइडेड मैच था। जब हम वहां पर बैठे मैच देख रहे थे, और ये जब बहुत कम स्कोर पे, सिर्फ 50-53 स्कोर पर 7 विकेटें आउट गिर चुकी थी लाहौर कलंदर की, तो बस एक अंदाजा ही था कि एक पार्टनरशिप ऐसी मिलनी है। 100 रन क्रॉस करना मुश्किल लग रहा था। तो 150 पे लेके जाएंगे, 145 पे ले जाएंगे, तो फिर अगर इतने स्कोर डालिए तो ये फिर फाइटिंग स्कोर होगा। तो फिर वैसे ही हुआ जैसा सिकंदर रजा और राशिद खान स्टैंड किया, और सिकंदर रजा ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 71 रन बना लिए। उस वक्त भी सरफराज की कमजोरी थी कि बजाय इसके कि उनकी विकेट लेते, उनको ठीक है एजाज भाई, अभी हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे अगले सेगमेंट में। अभी हमारे साथ एक नई साथी हमारी आई हैं, अनूश उमर उनका नाम है, सोशल वर्कर हैं। आपने मुकाबला, खैर मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि किसकी गलती थी, क्या था, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है वैसे कोयटा ग्लैडिएटर में? वैसे तो सरफराज ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। ये दोनों तो सरफराज के दुश्मन हैं आज।
अच्छा ये तो आपको ये अकेले डिफेंड perspective करना है। है सरफराज अहमद को। नहीं, सरफराज की वजह से हम जो अगर पीएसएल से हट के देखें तो सरफराज ने हमें मैचेस, अगर पुरानी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो एक आध मैच ऐसा था जो उनकी वजह से जीते भी थे। चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, अंडर बिल्कुल 19 वर्ल्ड कप बिल्कुल जीते हैं। एग्जैक्टली, अब आपने खुद ही बता दिया। तो और उसके बाद आपने देखा था कि जो क्राउड है वो उनके घर के बाहर किस तरह से था, उनको किस तरह अप्रिशिएट कर रहा था। तो देखें, गलतियों की गुंजाइश होती है, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर गलती पे गलती पे गलती पे एग्जैक्टली गलती पे गलती की एग्जैक्टली गुंजाइश नहीं अब फेवरेटिज्म तो मैं उनको नहीं दे सकती इस मैटर में, क्योंकि ये पीएसएल है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक प्लेयर को नहीं देखना, इसमें टीम वर्क होती है। तो पूरी टीम को चाहिए था कि एज अ टीम वो इस मैच को लेके चलें। अगर एक मैच, जो फर्स्ट मैच जब उन्होंने हारा था, तो उसी वक्त उनको पता होना चाहिए था कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर वही मिस्टेक्स कंटिन्यू रहेंगी तो मेरे ख्याल से कि फिर कैप्टन की भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, और कहीं ना कहीं टीम वर्क की जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन में भी कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग समवेयर। ठीक है ठीक है। दूसरी एक और आपके चीज लिए में- सवालात छोड़ दिए नहीं, इन्होंने। ये देखें, एक और चीज़ देखें। अब सरफराज अहमद जो हैं खुद अपने आप को जिम्मेदार नहीं कह रहे कि मैं जिम्मेदार हूँ शिकस्त का, बल्कि वो बॉलर पर सारा मलबा डाल रहे हैं। तो भाई जब 50 बॉलर तो आपके वर्ल्ड क्लास मैं हैं, वही नसीम मैं कह शाह, रहा हूँ कि वही जब हसनैन, 50 वही मैं कह रहा हूँ हफीज। 50 रन पे जब आपने 7 आउट कर लिए तो फिर आपकी कप्तानी कहाँ गई, आपके डिसीजन कहाँ गई? वहाँ पर ने अपने बॉलिंग को सही मोमेंट पे चेंज क्यों नहीं किया? जब सिकंदर रजा जो है वो फास्ट बॉलर पे हिट कर रहा था, वहाँ अपने स्पिनर को यूज़ क्यों नहीं किया? वहाँ आप स्पिनर को क्यों नहीं लेके आए? वहाँ आपने बॉलिंग चेंज क्यों नहीं की? यहाँ आपकी अच्छा एक चौका पड़ जाए, एक छक्का पड़ जाए, इनका ऐसा वही वाला साहब दोबारा हो गया। वो आके जो है बॉलर के पास खड़े हो जाते हैं और गुस्से में बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ें नहीं होती। आप उसके अगेंस्ट शाहीन शाह की कप्तानी देखें, रन्स नहीं थे, इतने बोर्ड पे रन्स नहीं थे, लेकिन उस बंदे ने जिस तरीके से कप्तानी की और जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों से गुल मिल के वो फील्ड में रहा और उसने खिलाड़ियों को हौसला दिया और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, आप 6 ओवर में 53 रन के बाद तो सभी ने कह दिया था कि आज कोयटा मैच जीत गया है। लेकिन उसके बाद देखें जिस तरीके से राशिद खान ने बॉलिंग की, फिर उसके दूसरे जो बॉलर्स थे उन्होंने जो वीज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो वहाँ उन्होंने कमबैक किया। 4 ओवर में 14 रन जो हैं वो राशिद खान ने दिए और ऐसे मौके पर दिए कि जहां पर उनको विकेट की भी जरूरत थी, उसने 2 आउट करके भी दिए। उस वक्त आपकी कप्तानी कहाँ थी? फिर आप कप्तान जब बैटिंग के लिए आते हैं तो आप, मेरी समझ में नहीं आया कि आप कर क्या रहे थे बैटिंग में। ना आपसे बॉल हिट हो रही है, ना आपसे कुछ हुआ, आप रन आउट से आप बचते हैं, फिर आप इतना आखिर तक नॉट आउट आते हैं। तो मैच तो फिनिश करना चाहिए। आज वकार यूनुस ने भी खास तौर पर उनको कहा है कि भाई ये पूरी जो शिकस्त की जिम्मेदारी है वो सरफराज पे बनती है, क्योंकि इतनी बॉलें खेलने के बाद तो आपका स्ट्राइक रेट छठे नंबर पे 150 160 होना चाहिए। कल मैंने सुना वकार को, उन्होंने 150 देखिए 150 बड़ी एहतियात से, एजाज भाई, वकार भाई को कल मैं सुन रहा था, वो कहने कि मैं फिर वकार उसको अगर कुछ कहूंगा तो लोग बुरा मानेंगे। वकार ने इस तरह का तासुर भी दिया कि सरफराज की परफॉर्मेंस। इन्होंने शाहीन शाह की बात की। शाहीन शाह ने कल जल्दी आए थे बैटिंग करने, ये फैसले को आप कैसे देखते हैं? उसकी वो डरा हुआ बिल्कुल नहीं है, बहादुरी के साथ फैसला किया उसने। जी हाँ साहब, वो बिल्कुल इन टाइम है। उसको उसका मतलब ये था कि जब मैं आ गया हूँ तो कोई लंबी लंबी शॉटें मारूं और इस तरह करूं कि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ओवर्स कम है, टीम दबाव में है, उसको निकाल सकूं। तो वो इसी चक्कर में शाहीन शाह अफरीदी पहले आए, तो उन्होंने कोशिश भी की और गो के वो 15 रन बनाकर आउट हो गए शाहीन शाह अफरीदी। इसके बावजूद वो जो जिस तरह आपने बात की ना कि शायद हम कोई तहरीरी तनकीद कर रहे हैं सरफराज पे, अच्छा तनकीद उस पर ही होती है जिससे उम्मीद होती है। जो आम बंदे पे तो जो किसी ने सर्व ही नहीं किया नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ूंगा। कल आपने, मोहम्मद वसीम मौजूद था और आपने कल सरफराज का खास तौर से सवाल किया कि उसका फ्यूचर क्या है, तो आप भी उसका दर्द रखते हैं। कल मैच से पहले हम, आपको याद होगा। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह पता क्या है कि ठीक है, एक टाइम होता है किसी भी प्लेयर पे, वो सदा वो सूरज भी एक साइड से चढ़ता है तो दूसरी साइड पे जाके गुरूब हो जाता है। वाह जितना ये जहाज ऊंचा उड़ ले उसने जमीन पे उतरना ही वाह। होता है। ये जो इज्जत जिल्लत वो तो खुदा के हाथ में होती है, अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा इज्जत दी है। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि वो एक अच्छा कप्तान था। अब पता नहीं उसे क्या हुआ है कि पीएसएल में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई मसाइल हैं, तो इससे बेहतर था वो पार्टिसिपेट ही ना करता, या फिर कैप्टन ही ना बनते ना सरफराज, तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि लोगों के वो आज भी हीरोज हैं, हीरो हैं, ऐसा नहीं है कि वो हीरो नहीं है। अच्छा वो उसके, अब देखे ना, कोई भी जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट देखता है, सरफराज को अच्छा खेलते हुए उसने देखा है। तो कल उनका जो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी सरफराज की एंड पे मैच फिनिश करने के मौका पर, तो वो नहीं थी जो एक बड़े कप्तान की जो जीत को चलिए लेके। सही है एजाज भाई,
आपकी बात तो वो ये चीज थी। आपकी बात मुकम्मल हुई। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर हम प्रोग्राम को बाकायदा दूसरे सेगमेंट में जाते हैं।